সকলোকে আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি সকলো ৰাইজলৈকে সেৱা জনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মানৱ উত্থান সেৱা সমিতি সৰ্বভাৰতীয় অনুষ্ঠান, আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমাৰ ইয়াতে সদ্ভাৱনা সন্মিলন আমাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এই সদ্ভাৱনা সন্মিলনত আমাৰ সদগুৰু মহাৰাজ সতপালজী মহাৰাজে আমাৰ এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই কেইখন 8খন ৰাজ্য মানে ভূটানসহ ইয়াতে ভক্তসকল ৰাইজ মানে ভকত বৈষ্ণৱ গোট খাব। আৰু এই গুৰু মহাৰাজ যি আহিব ইয়াতে তেখেতৰ প্ৰবচন, যিখিনি সৎসং প্ৰবচন আমাৰ ভাগৱতৰ যোগেদি কোৱা আছে শংকৰদেৱে, গতিকে সেই প্ৰবচন শুনাব। আৰু তেখেতৰ দ্বাৰা যিটো আমি শৰণ পালোঁ, সেই শৰণটো হৈছে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান, যিটো গীতাৰ যোগেদি, ভাগৱতৰ যোগেদি বা ঘোষাৰ যোগেদি আমাক গুৰুজনাই আজি 600 বছৰ আগতে জনাই থৈ গৈছিল। আৰু এতিয়া আমি সেইটো প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া আমি পালোঁ, পোৱাৰ পাছতে আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ সকলো দেখোন বাস্তৱমুখী আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ধৰ্মটো আমাৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে। কিন্তু আমি নজনাৰ কাৰণে অলৌকিকতাৰ মাজত আমি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি এটা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ধৰ্মটো প্ৰাপ্তি কৰি আৰু গুৰুজনাৰ যি শংকৰদেৱৰ যি মানে শক্তি আছিল, গুৰু মানে সদগুৰু কিয় তেখেতক কোৱা হৈছিল, আজিহে আমি এই আত্মজ্ঞান এই সতপালজী মহাৰাজ গুৰুৰ জৰিয়তেহে আমি আজি বাস্তৱত জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে আমাৰ লগত আছে এয়া আমাৰ গাঁৱৰ পৰা চিলাপথাৰলৈকে ইনচাৰ্জ, তেখেতৰ অধীনতে আমাৰ গোটেই আশ্ৰমবিলাক আছে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে, আৰু তেখেতৰ জৰিয়তে পৰিচালনা হয়। গতিকে তেখেতেও আপোনালোকক দুআষাৰ এই সম্পৰ্কত ক'বৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। অনুষ্ঠান ভাগ হ'ব জানুৱাৰী মাহৰ 7 আৰু 8 জানুৱাৰী। গতিকে এই 7 আৰু 8 জানুৱাৰী তাৰিখত আমি আমাৰ গুৰুজন আহিব, আৰু সেই গুৰুজনক আদৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই 8খন ৰাইজৰ মানে বহুত লাখ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়াত সমবেত হ'ব। আৰু গতিকে সেই অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ বৈষ্ণৱসকল আহিবই, আৰু লগতে আমি অসমবাসীৰ সকলোকে হাত কৰজোৰে এই অনুষ্ঠানলৈ এই 7 আৰু 8 জানুৱাৰীত সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তেখেতে আহি ইয়াত আমাৰ পৰিৱেশ, আমাৰ ভকতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতক আৰু গুৰুজনকো দৰ্শন কৰি নিজেও কৃত্য হওক আৰু নিজেও মানে সকলোকো পৰিয়ালো সকলোৱে ধন্য হওক। কিমান মানুহৰ ইয়াত সমাগম হ'ব? সমাগম মানে এনেকুৱা হয়, আমাৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতে, আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰায় লাখৰ ওপৰ ভকত বৈষ্ণৱ হ'ব। তাৰ ওপৰঞ্চি আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় আৰু বিদেশৰ পৰাও ইয়াত পৰ্যটক মানে গুৰুজনৰ শিষ্য, আৰু আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰাই বহু আলহী মানে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ মানে গুৰুৰ শিষ্যসকল অতিথি হিচাপে আহিব, আৰু সকলোকে ইয়াত আপ্যায়ন কৰিম। আৰু এই অনুষ্ঠান মানে এনেধৰণে আয়োজিত কৰা হয়, আপোনালোকে পুংখানুপুংখভাৱে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক দেখাব, আৰু এই অসমৰ ৰাইজক দেখালে গম পাব যে গুৰুজনৰ যিটো মহান শক্তি, শংকৰদেৱৰ গাত যিটো আছিলে বা কীৰ্তন বা ঘোষাৰ যোগেদি যিখিনি বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছিলে, আজি সেইখিনি আমি ইয়াত পাইছোঁ। ইয়াত সকলো জাতি উপজাতি ইয়াত পাব। শংকৰদেৱে যেনেকৈ 12 জাতিক এক জাতি কৰিছিল, ঠিক আজি এই গুৰুজনো আমাৰ সকলো জাতিকে এক জাতি কৰিছে। ইয়াতে এই আমাৰ আদিবাসী ভাই, বিজু ভাই, এই আমাৰ বাইজী আছে, আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো জাতি, বিহাৰী, বঙালী মানে আদিবাসী, আৰু নেপালী, আমাৰ কোচ কেওট কলিতাৰ পৰা ধৰি আহোম, বড়ো, সোণোৱাল কছাৰী, মেচ কছাৰী আদি কৰি আমাৰ প্ৰায় মানে মিচিংসকলো ইয়াত মানে আমাৰ জড়িত হৈ আছে। এই মানে আত্মজ্ঞান লৈ গুৰুজনৰ নিজৰ জীৱন মানে অতি সুখ আৰু শান্তিৰে চলিবৰ বাবে সকলোৱে প্ৰয়াস কৰিছে, আৰু সকলো উপকৃত হৈছে আমি যি দেখি আহিছোঁ। এই কাম এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 60% হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। যে আমাৰ মূল পেণ্ডেলটো দেখিছে যে প্ৰায় ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নেদেখি মানে চিনি নাপায় আপুনি ইজনে সিজনক। গতিকে তেনে এটা পেণ্ডেল আমাৰ তাতে সৎসং আমাৰ গুৰুজনে ইয়াত বহি আমাৰ মূল সৎসং ভৱনত মানে আমাৰ সভাখন হ'ব। আৰু বাকী আমাৰ সেৱা দল আছে বহুত ডাঙৰ আৰু আমাৰ শিবিৰ আছে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ, আৰু প্ৰত্যেকখন যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে আমাৰ সেৱা শিবিৰ আছে। গতিকে তাতে আহি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল আহি 2-3 দিনকৈ ইয়াত থাকিব। আৰু যিখিনি আমাৰ ভাণ্ডাৰা খোৱা বোৱা যিটো ব্যৱস্থা, সেইখিনিও আপোনালোকে পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ, তেতিয়াও আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাব আমাৰ কেনেকুৱা এক সুন্দৰভাৱে আমাৰ অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱে কামখিনি কৰে। আৰু এতিয়াও ধৰক ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 500ৰ ওপৰ ভকত বৈষ্ণৱ আহি বিনা ইয়াত মানে মাচুলত, বিনা হাজিৰাত সেৱা, গুৰুজনৰ যিটো সেৱা মানে মাধৱদেৱে দেখুৱাই থৈ গৈছিল, সেই আৰ্হিৰে আজি আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলে আহি ইয়াত সেৱা, গুৰুজন আহিব আগমনৰ বাবে, গুৰুজনৰ সেৱাৰূপে আমাৰ সন্ত সাধুসকলৰ সেৱাৰূপে আহি পেলাই ইয়াত কৰি আছে। नमस्कार। अभी
आप लोगों ने सुना हमारे गुरु महाराज जी का आगमन होने जा रहा है यहाँ। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी सद्भावना सम्मेलन सोलंग में होता है और इस बार भी हो रहा है। तो हमेशा 27-28 व 3-4 व 4-5 ऐसा होता था। इस बार 7 और 8 जनवरी को नया साल 26 में होने जा रहा है। और गुरु महाराज जी आने के उपलक्ष्य में आपके सामने आगे बहुत बड़ा विशाल पंडाल बन रहा है, जिसमें गुरु महाराज जी का प्रवचन होगा। लाखों भक्त लोग वहाँ बैठ कर के सत्संग सुनेंगे। आप इधर देख रहे हैं, इधर मानव सेवा दल का शिविर बना हुआ है और अभी भी इधर में सेवा, मतलब भक्त लोग जितने पधारेंगे सबके लिए सारा व्यवस्था, मतलब पहले से गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आएंगे, उनके प्रवचन सुनने के लिए आएंगे। एक साल में भक्त लोग गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं, उनका दिव्य प्रवचन सुनते हैं। इसके लिए सभी लोग तैयारी होकर आते हैं। गुरु महाराज जी का सभी लोग सेवा करते हैं यहाँ, और उस सेवा में सभी लोग जुटा हुआ है। तो ये जो मानव धर्म हम लोग कहते हैं, मानव का धर्म, गुरु महाराज जी मानव धर्म के प्रणेता है। सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज जी देश के कोने कोने में, पूरे विश्व में गुरु महाराज जी का ये सद्भावना सम्मेलन मानव धर्म का प्रचार हो रहा है। और गुरु महाराज जी हर देश में, गुरु महाराज जी सिलीगुड़ी में 31 और 1 तारीख का प्रोग्राम है, वहाँ करके गुरु महाराज जी यहाँ सोलंग में आएंगे। और इसके लिए यहाँ दूर दूर से आपको अनुभवी संत महात्मा यहाँ आएंगे, भक्त लोग, प्रेमी लोग देश विदेश से आ रहे हैं। और उस व्यवस्था में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। और हम यही संदेश देना चाहते हैं असम वासी को कि इतने बड़े महान विराट सत्संग सद्भावना सम्मेलन, हम लोग त्रेता युग में भगवान राम जब अयोध्या में जा रहे, लंका में जा रहे थे, तो भगवान का साथ दिया था सब लोगों ने। समुंदर में पुल जब सेतु बन रहा था तो वानर भालू लोग भगवान को सहयोग किया था। तो इसी तरह इस कलयुग में भी हमारे गुरु महाराज जी वेद शास्त्र के अनुसार जो लिखा हुआ है, जो उसके वो वेद शास्त्रों को लेकर के गुरु महाराज जी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। हमारे आसाम में हंकरदेव महाराज जी आए थे, उनका भक्त माधव देव जी थे। उनका जो उद्देश्य था, उनका जो लक्ष्य था कि हम मनुष्य हैं और मानव का धर्म क्या है, तो धर्म क्या है, गुरु महाराज जी उसी को समझाते हैं सबको कि हम मानव तो हैं, लेकिन मानव का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म केवल मंदिर बनाना ही नहीं है, मस्जिद बनाना ही नहीं है, हम बहुत अच्छे वही नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मानव का धर्म यही है कि पहले अपने आप को जानो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हम अच्छा काम करेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए पहले गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमको बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए पेड़ को नहीं बदलना है, धरती को नहीं बदलना है, आसमान को नहीं बदलना है ना, समुंदर को नहीं बदलना है, तो हमें किसे बदलना है, कहते मानव को बदलना है। और जब तक हम मानव को नहीं बदलेंगे तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी स्वच्छ मानव, जब हम मानव धर्म को जानेंगे, ज्ञान को लेंगे, तभी हम जान सकते हैं कि भाई हम अच्छा कर्म कर सकते हैं। जब हम अच्छा कर्म, क्योंकि रावण के पास में भी धन का कमी नहीं था, बहुत धनवान थे रावण, लेकिन उसके पास में ज्ञान नहीं थे रावण, है ना। तो इसीलिए रावण भगवान को नहीं समझ पाया। तो इसीलिए आज सोलंग में यहाँ इस कलियाबर में जो गुरु महाराज जी आ रहे हैं, हम पूरे आसाम वासियों को निमंत्रण देना चाहते हैं कि इतने महान संत समागम, महापुरुष का प्रादुर्भाव ये सोलंग में होने जा रहे हैं। हर साल हम सबको निमंत्रण देना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम में आकर के सद्गुरु महाराज जी का दर्शन करें, उनका प्रवचन सुने और ज्ञान लेकर के अपने मनुष्य जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। और सभी को निमंत्रण है। और आप अभी तो नहीं आए हैं, अभी थोड़े दिन बाद में आप आएंगे तो इधर भंडारा बनेगा, सबके लिए हर व्यवस्था, सोने के, खाने का, रहने का, बैठने का पूरा व्यवस्था हो रहा है। तो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ फैला हुआ है, तो इससे आगे तो हम क्या कहेंगे, है ना। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि आप
सबको भी निमंत्रण है कि आप लोग आइए, देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। हम जब तक दवाई नहीं खाएंगे तो हमारा बीमार अच्छा होगा नहीं। दवाई खाना पड़ेगा और वो भी नियम से खाना पड़ेगा, टाइम से खाना पड़ेगा। भूख लगा है तो हमको रोटी खाना पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। उसका महिमा सुनने से हमारा भूख नहीं मिटेगा। इसी तरह प्यास लगा है तो हमको पानी पीना पड़ेगा, पानी का महिमा सुनने से प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह जो ज्ञान का प्रचार है, जो ऋषि मुनि लोग हम लोग सुनते हैं शास्त्रों में, जो हर युग में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग है, हर युग में ज्ञान का प्रचार हुआ है। तो गुरु महाराज भी उसी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग भी उसी में लगे हैं गुरु महाराज जी के साथ में। और गुरु महाराज जी हमारे हर गरीब दुखियों को, हर एक व्यक्तियों को आत्मज्ञान दे करके उसे मानव से महामानव बनाते हैं, उसे अच्छे रास्ते में ले जाना चाहते हैं, उसके विचारों को बदलना चाहते हैं। बस यही गुरु महाराज जी का उद्देश्य है, मानव का धर्म, कि हम पहले अपने बदले फिर हम दूसरे को बदल सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय।